Hello everybody and welcome in MBM classes. Today I am going to start new topic trigonometry. And before explaining the meaning of trigonometry, let me just show some figures and in which I am going to ask some question so that it will totally depend to find out. That means we have to think about that what we have to find out and how to find out. And then I am going to explain with the meaning of the trigonometry. So the first figure here, it shows that suppose this one is a building and you are at the top here. When you just see your friend on the ground just 10 meter far away from the foot of the building, then what is actually height of the building? This is one of the question. Maybe on the bank of river, two buildings are there, and from the top of these buildings, when you just to see the foot of the buildings, and suppose the height of the one building is given to you, the question is find the height of other building or width of the river. Similarly, suppose you have one kite with you here and it is tied with one string, and you are here, the position of the kite is here. After some time, when the kite is just flying here, then that means the length of the string is increases, then what will be the distance covered by the kite? That means this distance is unknown. What is this distance? Maybe they are asking this only. If the height of the kite from the foot of the earth they have given, that means height of the distance between the kite and the earth if they have given, they can ask this question and this question. So all these questions, all these examples shows that we are using some mathematical technique to find out all these. And this technique actually comes from the branch of mathematics only, that is called trigonometry. So we can say in short, trigonometry is a branch of mathematics. And here the trigonometry is divided into three parts so that we can easily find out the meaning of the trigonometry. Trigonometry, here it is, the spelling is trigonometry. Trigonometry is a Greek word which divided into three parts here like this. In short, I am going to explain. Tri means three, okay. Gon means sides, and metry, in short, we can say measure. So here we can easily find out that three sides measure. That means we are talking about the sides. But sides of what? Sides of a triangle. So always remember, in trigonometry, we are only talking about right angle triangle, not any other, because we are going to find out the relationships between the three sides and the angles also. So in trigonometry, always remember we are going to make figure triangle as right angle triangle. So in right angle triangle, here the most important part to learn that ABC, suppose the name of the triangle is ABC. So this is 90 degree, as you know very well. Then side opposite to 90 degree. Always remember side opposite to 90 degree. 90 degree के just opposite जो side होता है, that is only the longest side. We are going to say hypotenuse. Longest side है ये, सबसे बड़ी side होती है. And here this one perpendicular, ये height जो है उसकी adjacent sides होती है. दो adjacent side है किसी भी angle के लिए. 90 जिस पे बन रहा है, एक 90 डिग्री से ये दो साइड से 90 बन रहा है. सो तो ये वर्टिकल लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग बेस बोलते हैं. इन केस आपको अगर राइट एंगल ट्रायंगल में किसी और एंगल की बात करके उन्होंने रिलेशन मांगा या कुछ एंगल के बारे में बात की, देन always remember rather than 90 degree, two acute angles are there. So they are asking about any one of them, either A or angle C.
ओके, नॉट 90 डिग्री। दैट मीन्स 90 डिग्री के अलावा जो दो एक्यूट एंगल्स होते हैं उनमें रिलेशन का भी वो मांगते हैं। वैल्यूज अलग अलग निकलते हैं बट वो जनरली जब भी पूछेंगे वो ये एक्यूट एंगल के रिलेशन को ही पूछते हैं। क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू मेक राइट एंगल ट्रायंगल इन विच opposite of 90 degrees hypotenuse, this one is perpendicular and this is base. ये सिर्फ 90 डिग्री के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं यहाँ पे, बट इन ट्रिग्नोमेट्री विच एवर एंगल दे आर आस्किंग वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट साइड्स just opposite of this angle. So let me show how. Now see, let me just make one figure. The name of this triangle I'm just taking like this, A B C. फिर से वैसे ही लिया। 90 के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होता है, दैट इज करेक्ट। ओके, ऑलवेज रिमेंबर ऑपोजिट ऑफ 90 जो है वो हाइपोटेनस होगा। बट सपोज दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट और कंसिडर अबाउट एंगल ए, मतलब एंगल ए के बारे में बात करते हैं, देन ऑपोजिट ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। रिमेंबर, ऑपोजिट ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। Always remember, opposite of 90 is hypotenuse, but the considered angle is suppose A, then side opposite to this angle will be perpendicular, and adjacent side of this angle will be base. In short, we are going to write opposite side of considered angle, whatever be the considered angle, and this one is adjacent side. तो इसको शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनस है, कंसिडर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, जो तो थर्ड साइड बचती है वो बेस हो जाता है। सिमिलरली इफ आई एम गोइंग टू कंसिडर एंगल सी, सपोज अगर आपने इस एंगल को कंसिडर किया, दिस एंगल इज सी, this is B, this is A and this is 90 degree. So opposite of 90 hypotenuse, उसमें कोई चेंज नहीं है। Then considered angle is C. Then considered angle C है तो ये साइड उसका परपेंडिकुलर होगा, जो थर्ड साइड बच जाएगी वो आप उसको बेस लिख सकते हैं। So actually the trigonometry is relationships between the sides and the angle of a right angle triangle. So let me just explain with the help of a figure, this one. What is actually the ratio of the sides and angles they are asking in this topic. In earlier case also, astronomers used this concept to find out the distance of the stars and the planets from the earth. And even in the engineering, this technique, different physical science also, the trigonometrical concept we are using to find out such type of relation. So the important technique to find out the relation or to find out the angle or to find out the height or width of the building or tower, whatever, it is totally depend on the same technique that is called trigonometry. So I am going to explain you first of all what is the meaning of ratio or the relationship between the ratios of the sides of a right angle triangle. Okay, before that I want to write one thing, because some different names are there. जैसा कि हम सब लोगों के नाम होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज को नाम से पहचानते हैं, आइडेंटिटी होती है उनकी। सो हियर ऑल्सो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेशियो ऑफ द साइड्स एंड यू नो द मीनिंग ऑफ रेशियो। रेशियो मीन्स कोई भी दो नंबर्स, एक को न्यूमरेटर में लिखते हैं, दूसरे को डिनोमिनेटर में। देन देयर आर 3 डिफरेंट साइड्स ना, अगर यहाँ पे 3 साइड्स है तो रेशियो ऑफ दीज 2 साइड्स और रेशियो ऑफ दीज 2 साइड्स और रेशियो ऑफ दीज 2 साइड्स। Maybe this side is in numerator, this is in denominator, or maybe this side is in numerator and this is in denominator. So I am going to write few different conditions with the name of the trigonometrical ratios of the right angle triangle. So here let me just explain with the name of triangle as PQR. Obviously this angle is 90, so this one is hypotenuse. Okay, let us suppose we considered angle P. If I am going to consider angle P, then a side opposite to angle P will be perpendicular. So the third side is base. Now I am going to write few names, and before names let me just start writing the ratio. For example, I want to start writing PQ upon PR, or you can say PQ upon QR. आपके पास ये 3 साइड है, इनमें से किसी भी 2 को रेशियो में लिखो।
और कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी कंपलसरी नहीं कि हर बार ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, जैसे आपकी मर्जी हो आप लिख सकते हो। रेशियो ऑफ द टू साइड्स, लेट अस स्टार्ट विद दिस वन, पी क्यू, मैं आपको सिर्फ लिख के दिखाती हूँ अभी, पी क्यू अपॉन पी आर, और पी क्यू अपॉन क्यू आर, और पी आर अपॉन क्यू आर, कैसे भी लिख सकते हैं, और भी हमारे पास। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में दो साइड को आपने रेशियो में लिखा। अब आप रेशियो में लिखते हैं, इतने डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, दैट मीन थ्री साइड्स, ऐसे हम लोगों ने थ्री रेशियोज लिखे। अब इसको अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब इसको हम चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को यहाँ और न्यूमरेटर को यहाँ लिखते हैं, तो फिर से हमारे पास तीन रिलेशन आ जाएंगे। सो वी हैव 6 रिलेशन और रेशियोज ऑफ द ट्रायंगल। तो इतने सारे 6 ट्रायंगल्स का रेशियो होने के बाद उनको याद कैसे रखेंगे? सो इन शॉर्ट आई एम सेइंग कि हमने उनको कुछ नाम से बुलाना होता है, तो उनकी आइडेंटिटी पता चल जाती है कि ये किस रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर दैट वी हैव सम एब्रिवेशंस, वी हैव सम नेम ऑफ द रेशियोज। इन शॉर्ट आई एम सेइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन, and sine of angle P. Suppose if I am going to say sine P, sine और P अलग अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। That means हम लोगों को P रिप्रेजेंट करता है दिस एंगल, कि हमें P को कंसिडर किया है और उसमें हमें साइन की वैल्यू को बताना है, मतलब साइन को रिलेशन में लाना है। तो वो साइन का रिलेशन कैसे होगा, किस दो साइड को लेके साइन का रिलेशन बनेगा? तो साइन और पी सेपरेट नहीं है, और उसको शॉर्ट, उसका साइन का एब्रिवेशन होता है SIN, साइन शॉर्ट में लिखते हैं, और आप उसी एंगल को साथ में लिखेंगे। देन यू हैव टू रीड इट साइन पी। साइन और पी सेपरेट नहीं है, फिर से बोल रहे हैं, ये दोनों प्रोडक्ट नहीं है, साइन इनटू पी भी नहीं बोल सकते, ये एंगल का नाम है जिसमें आपको रिलेशन बताना है साइन का। तो इसको रीड करेंगे साइन पी। इसी तरीके से हम लोग करेंगे साइन क्यू, साइन आर, इस टाइप से। साइन क्यू नहीं, पी क्यू तो 90 डिग्री है, सॉरी, साइन पी और साइन आर, ऐसे हमारे पास और भी नाम है। तो साइन पी को एब्रिवेशन उसका छोटा सा यूज किया साइन। सिमिलरली दूसरा एक होता है कोसाइन, उसको हम शॉर्ट एब्रिवेशन में लिखते हैं कॉस, और थर्ड होता है टैंजेंट, उसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं टैन। तो एब्रिवेशंस जनरली हमारे पास रीड आउट होती हैं, साइन पी, कॉस पी, टैन पी, या साइन ए, कॉस बी, साइन, ये जितने भी एंगल्स हैं उसको हम उनके साथ में लिखेंगे कैपिटल लेटर के साथ, एंड दे आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द साइन एंड पी, दे आर एक्चुअली कंसिडर्ड विथ सम पर्टिकुलर एंगल एंड द रिलेशन बिटवीन द साइड्स। गॉट इट? सो हियर what is actually sin P? So according to this figure, sin P is the relation between, or the ratio between, the perpendicular and hypotenuse. That means we are considering this angle, हमको इस एंगल को कंसिडर करना है, तो इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज ये है। So sin P is a relation between the two sides perpendicular upon hypotenuse, means QR upon PR. इन शॉर्ट हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सिमिलरली कॉस के लिए लिखेंगे हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो व्हाट इज बेस इन दिस ट्रायंगल व्हेन यू कंसीडर एंगल पी? बेस वाज पी क्यू, सो पी क्यू अपॉन पी आर। सिमिलरली टैंजेंट, टैन के लिए लिखते हैं हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास था क्यू आर एंड बेस इज पी क्यू, दिस इज कॉल्ड टैन। अभी आपने सिर्फ ये दो साइड को लिया तो एक नाम आ गया, ये दो साइड को लिया बेस अपॉन हाइपोटेनस तो दूसरा नाम से आया, थर्ड आपने परपेंडिकुलर और बेस को लिया तो आपके पास टैंजेंट आ गया। दैट मीन्स ओनली 3 मेन रेशियोज आर देयर, बट 3 more will come when you just invert it, मतलब इनको उल्टा कर दोगे, इनका रेसिप्रोकल ले लोगे, आप पी आर अपॉन क्यू आर लिखेंगे, पी आर अपॉन पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू अपॉन क्यू आर लिखेंगे, तब उनके नाम ये थोड़ी होंगे, तब उनकी आइडेंटिटी बदल जाएगी, तो उनके डिफरेंट नाम होंगे, वो मैं लिख के दिखाती हूँ। साइन, कॉस, टैन आर द बेसिक एंड द रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज 1 कोसेक, मतलब हम लोग एक नया नाम से इसको लेंगे जो 1 अपॉन साइन पी के बराबर है।
तब जाके हम उसको उल्टा करके लिख लेंगे PR अपॉन QR मीन्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जैसे बोलो साइन होता है साइन P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे सेक P। सेक P का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो 1 बाय कॉस P। तो कॉस हमारे पास था हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस PQ अपॉन PR, तो उसको आप उल्टा करके लिखिए PR अपॉन PQ, तो ये आएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। सिमिलरली लास्ट आपके पास होगा कॉट P, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन, तो 1 अपॉन टैन P। तो आपके पास टैन आपके पास QR अपॉन PQ था, तो इसको उल्टा लिखेंगे PQ अपॉन QR मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इन लोगों को हम लोग इस तरीके से भी, इस नाम से भी जानते हैं, कोसिकेंट कोसेक के लिए, सीकेंट फॉर सेक एंड कोटैंजेंट फॉर कॉट P। इसी तरीके से आपको ये इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना पड़ेगा। मैं एक और एक्सप्लेनेशन देती हूँ, आप उससे भी समझने की कोशिश करिए। लेट मी एक्सप्लेन यू विद वन न्यू ट्रायंगल। सपोज ट्रायंगल ABC. This one is 90 degree. Okay. After that, this is 90 degree and we are talking about suppose angle A. Clear? Now we are going to write the ratios of the sides of triangle ABC with angle A. So important part, as I already told you about the three sides. Okay. So first of all, with the sine A, because we are talking about sine A. So sine A is what? Actually it is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse. Then cos A. Cos A was base upon hypotenuse. And then tan A, that is perpendicular upon base. We are going to write the name of perpendicular base hypotenuse later. First of all, let me just tell you about the ratio between perpendicular and hypotenuse will be sin A. Ratio between hypotenuse and base upon hypotenuse will be cos, and ratio between perpendicular and base will be tan. Okay. Then after that, as I told you, when you just change the reciprocal, to take the reciprocal of this side, like hypotenuse upon perpendicular, just इसका उल्टा किया, यहाँ पे उसका उल्टा कर दिया hypotenuse upon base, and यहाँ उसका उल्टा करा base upon perpendicular. So I said कि इनके नाम भी बदल जाएंगे, तो उनके नाम अब क्या होंगे? That is साइन का होता है हमेशा कोसेक। एंगल ए लेते हो इसीलिए आप यहाँ पे एंगल ए लिखेंगे। अगर आपके पास एंगल सी या बी कुछ भी एंगल होगा, वही एंगल यहाँ भी होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, दीज आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोसेक एंड ए, एक्चुअली दिस इज द रिलेशन और द साइड्स रेशियो इन टर्म्स ऑफ कोसेक ऑफ एंगल ए। ये रिलेशन बताना है कोई दो साइड का जिसका नाम कोसेक है। अब वो कैसे कोसेक हो गया? यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन नाम दिया था, तो अब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो को आपको दूसरा नाम देना पड़ेगा, इसीलिए उसका नाम कोसेक हो रहा है। तो ये जब रेसिप्रोकल हो रहा है तो हम बोलते हैं रेशियो ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए इज कोसेक ए। यहाँ कोसेक ए का रेसिप्रोकल साइन ए होगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कॉस के लिए भी हम ऐसे लिखेंगे। अगर कॉस आप बोलते हैं बेस अपन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपन बेस, उसका नाम अब हो जाएगा सेक ए। सिमिलरली रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाज tan, तो अब उसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर विल बी कॉट। क्लियर? अब यहाँ पे हम आपको लिख के दिखाते हैं कि एब्रीवेशन साइन किस किस के लिए है। साइन एब्रीवेशन हमने किसके लिए लिया था? साइन के लिए। ओके। फिर कॉस के लिए हमने क्या लिया था? कोसेक। और टैन के लिए था टैंजेंट। सिमिलरली अब हम इनको लिखते हैं कोसेक के लिए। हमारे पास जब कोसेक की बारी आती है तो हम लोग लिखते हैं कोसिकेंट। जब हमारे पास सेक के लिए लिखा जाएगा तो उसको लिखे थे सीकेंट।
ये सब एब्रिवेशन यूज करना है आपको। आपके इतने बड़े बड़े नाम सिर्फ समझने के लिए, याद रखने के लिए करिए, नॉलेज के लिए रखने के लिए, बट जनरली जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हम एब्रिवेशन ही यूज करेंगे। और कॉट के लिए हम लोग लिखते हैं कोटैंजेंट। एब्रिवेशन हमने किसके लिए लिखे? कोटैंजेंट के लिए कॉट, सीकेंट के लिए सेक, कोसिकेंट के लिए कोसेक, साइन के लिए साइन, यहाँ पे सिर्फ ई नहीं आता इसमें एब्रिवेशन में, कोसेक का कॉस एंड टैंजेंट का टैन। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि हमें कभी किसी भी रेशियो को निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो आप एक छोटा सा ट्रिक याद रख लीजिए कि पी बी पी अपॉन एच एच बी means P B P अपॉन एच एच बी। एक्चुअली ये ट्रिक है, मैं आपको इसमें याद करा देती हूँ। ये ट्रिक को कैसे याद करते हैं, इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, इसको किस टाइप से हमें याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेने में इजी रहे। तो हमेशा याद रखिए फर्स्ट वाला P अपॉन V, पंडित बद्री प्रसाद, इस तरीके से याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो फर्स्ट वाला जो रेशियो है वो साइन का होता है। आप देखिए न्यूमरेटर से P और H देख लीजिए आप, P और H साइन के लिए है, B अपॉन H कॉस के लिए है, P अपॉन B टैन के लिए है। अब आप डिनोमिनेटर की तरफ से स्टार्ट करिए, H अपॉन P तो आपके पास कोजेक आएगा, वो H अपॉन B वो आपके पास सेक आएगा, और B अपॉन P आपके पास कॉट आएगा। क्लियर? तो ये एक आपको बहुत मेमोरी में रखने वाली एक इजी से ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज याद हो जाएंगे। और एक अब बहुत छोटा सा एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑल्सो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। से आपने बोला साइन ए क्या था? साइन ए आपने बोला ये तो P अपॉन H था, तो फिर कॉस ए क्या था? आपने कहा वो तो B अपॉन H था। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये H से H कट जाएगा, तो आपको मिलेगा P अपॉन B। बट एक्चुअली P अपॉन B क्या है? टैन थीटा। तो यहां हमने लिख दिया टैन ए। तो आपने क्या देखा इधर? न्यूमरेटर साइन ए, डिनोमिनेटर कॉस ए। सो इन केस अगर साइन ए अपॉन कॉस ए कभी आ जाता है, देन वी कैन राइट इट इज इक्वल टू टैन ए। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, साइन ए अपॉन कॉस ए अगर कभी डिवीजन में आ गया तो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट टैन ए। सिमिलरली अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट मीन्स कॉस ए अपॉन साइन ए, तो आपको tan का रेसिप्रोकल भी याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan? रेसिप्रोकल ऑफ tan वाज cot, सो वी हैव टू राइट हियर cot a। तो आपको ये भी लिख सकते हैं, tan a की जगह sin बाय cos। ये अभी आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें काफी हेल्प मिलेगी। अभी आपको सिर्फ ये बेसिक याद रखना है कि व्हाट आर साइन cos tan एंड व्हाट आर कोसेक सेक cot, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल कैसे हैं, क्या नाम से इनको याद रखते हैं, और ये उसकी ट्रिक है, आपको याद रखने के लिए बताना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू P अपॉन H लिखा, देन यू कैन इजीली कंसिडर व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर। दिस साइड इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस वन इज बेस। तो आपके पास परपेंडिकुलर BC है, यहां पे आप लिख सकते हैं BC अपॉन AC। इसी तरीके से यहां पे cos A के लिए लिखेंगे AB अपॉन AC, और tan थीटा के लिए आप लिख देंगे BC अपॉन AB। सिमिलरली आप यहां भी लिख सकते हैं, आप उनको साइड्स के उसमें फॉर्म में लिख दीजिए। तो ये AC अपॉन BC, यहाँ पे AC अपॉन AB, और ये होगा AB अपॉन BC। Now see, this is actually the basic part of the trigonometry chapter.